Good evening, everyone. My name is Ramesh, and I am finally a master's student in survey research and data analytics at International Institute for Population Sciences, Mumbai. On behalf of Cape Rajasthan organization, it is my distinct privilege to extend a warm welcome to each one of you to today's session on the theme how to leverage AI for effective writing. We are living in an era where artificial intelligence is reshaping every sphere of our lives, from healthcare and governance to education, research, and innovation. Naturally, the world of writing and content creation has also evolved alongside this transformation. Today, AI is not merely a support tool, it has become a powerful partner that enhances the way we think, organize our ideas, and communicate with greater clarity, precision, and impact. To help us navigate this dynamic and rapidly evolving space, we are truly fortunate to have with us a distinguished public policy professional, writer, and thought leader. It gives us immense pleasure to introduce Dr. Priyank Chauhan, Director of Accelerating India Fellowship at the Politics, Policy, and Governance Foundation. He is widely recognized for his insightful work on governance and public affairs with contributions to leading publications such as the Indian Express and Swarajya. We are sincerely grateful that he has taken time out of his busy schedule to share his valuable knowledge and experience with us today. Please join me in extending a warm and enthusiastic welcome to Dr. Priyank Chauhan. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Ram Naresh, for the wonderful introduction. Vese, I'm not a doctor. I was enrolled in a PhD program, but I left it. So I'm not a doctor yet. Anyway, wonderful to be here. And before starting this session, let me say that I have structured this session to be interactive. So this is all about me sharing a few things that I do, how I incorporate AI in my own workflow. एंड मेरा ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन है कि आप सब भी वो ऑलरेडी कर रहे होंगे. तो व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग उसको ज्यादा इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, दिस इज द मेन थीम ऑफ द सेशन. एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बी इंटरेक्टिव. तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बीच में कभी भी ये जो गूगल मीट पे होता है ना रेज हैंड करने का सिस्टम, इसको आप यूज करके मुझे रोक सकते हैं एंड आई कैन क्लैरिफाई वट एवर क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आई थिंक वी कैन टेक देम एट द एंड. इसके अलावा आई थिंक आई हैव ए फ्यू स्लाइड्स दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो आई कैन मे बी शेयर देम. तो पहले तो आप मुझे आप सब लोग मुझे बता सकते हैं, दिस इज ए ओपन क्वेश्चन आई वांट टू अंडरस्टैंड बिफोर आई मतलब डाइव इनटू दिस टॉपिक, कि आप में से कितने लोग ऑलरेडी किसी भी मतलब फॉर्म में एआई का कुछ यूज कर रहे हैं. ये अच्छा, उसके पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सभी लोग अभी प्रेजेंट हैं, तो आर ऑल ऑफ अस लाइक आर ऑल ऑफ यू पीएचडी स्टूडेंट्स और लाइक अंडरग्रेड्स और व्हाट, मतलब व्हाट इज द शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट? मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल. अच्छा, तो मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल है तो दो तरीके की राइटिंग होती है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर ऑलरेडी डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च राइटिंग अपने काम के लिए, एंड सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी राइटिंग फॉर पब्लिक, मे बी लाइक ब्लॉग्स और समथिंग, और एक जनरल ऑडियंस के लिए जो राइटिंग होती है. तो आई थिंक दैट वुड बी द यूज केस. तो आप में से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर देयर एनीबडी कैन लाइक पिच इन हियर. आई वांट टू नो कि आप ऑलरेडी मतलब एआई का यूज कर रहे हैं और हाउ एग्जैक्टली डू यू यूज इट, ये मैं जानना चाहता हूँ. एनीबडी कैन स्टार्ट. हम सब जेमिनी, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स यूज करते हैं. जैसे अपनी राइटिंग पहले लिख कर दे दिया और उसमें कुछ उसकी लैंग्वेज ठीक करनी है, ग्रामर ठीक करनी है. कई बार ग्रामरली का भी यूज करते हैं उसी के रिगार्डिंग. Anybody else who already uses AI and would like to tell me ki what do they use AI for? So somebody has said for brainstorming, nice. To simplify some concepts, good. Okay, I think I get a general read of the room. I have a basic idea of what you guys are using it for. ठीक है, तो let me just start now. So the outline of the presentation would be, it's a very short presentation. It won't take more than 30 minutes. So the outline is कि पहले we will talk about what AI can and cannot do. Then, because prompting is the main thing when it comes to the general uses of artificial intelligence, तो हम उसके बाद बात करेंगे कि prompt का कैसे यूज करें.
फिर आई विल डेमोन्स्ट्रेट सम राइटिंग यूज केसेस, और फिर आखिरी में बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट एआई और कैन नॉट डू। तो आप में से जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आपने ये अभी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि purely from a, let me share something about my own work. So I I run a book fellowship, Accelerating India Fellowship, and most of my work is about judging other people's work. So my work is mainly first writing my own personal work, but also judging a lot of work. So that is why I have a very good understanding of what AI currently is able to do as far as writing is concerned. एंड नॉट जस्ट कि एआई का अच्छा यूज क्या होता है, मेरे को क्योंकि मैंने इतना सारा राइटिंग जज कर लिया है, मुझे ये अच्छे से पता अभी ये भी है कि एआई का सबसे गलत यूज क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एआई करता है फॉर एनी पर्सन हु इज राइटिंग, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, आइडियाज आइडियाज के बीच में कनेक्शन भी आ गए हैं, आपको ये भी पता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, बट आप पेज पे लिखने बैठते हैं तो कुछ मतलब अच्छा सा आता नहीं है। तो व्हाट एआई इज एबल टू डू फॉर पीपल लाइक अस, जिनके पास आइडियाज वगैरह हैं बट हु आर सफरिंग फ्रॉम दैट ब्लैंक पेज सिंड्रोम, कि खाली कागज रखा हुआ है, उसको कुछ लिखा नहीं जा रहा, कि इट कंप्लीटली किल्स दैट सिंड्रोम। आप अपने आइडियाज शेयर करके एक बेसिक सबसे पहला ड्राफ्ट जो है आप तुरंत रेडी कर सकते हैं। ये ऑब्वियस बात है और ये सब राइटर्स जानते हैं कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है किसी भी राइटिंग का, वो आखिरी ड्राफ्ट और उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। बट as soon as you are done with the first draft, that means you are done with like 50% of the process, आपका आधा काम हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है कि आधा काम बचा है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बट ये बहुत ही अच्छा सक्सेस ऑलरेडी है कि हमारा आधा काम पूरा हो गया है, क्योंकि उसके बाद रिफाइन करने का काम है, उसको प्रेजेंट करने का काम है, एडिट करने का काम है। ये सब चीजों में दिमाग ज्यादा जल्दी चलता है रेदर देन एकदम सीधे आप लिखने बैठ जाओ तो उतना नहीं चल पाता है। तो one of the best use of AI is, and all of us who are in any profession which is connected to writing, especially you guys, because you have to write a lot and you have to write more often. तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एआई ने वो जो पूरा अपना वर्क फ्लो जो होता था ना हमारे दिमाग में कि कैसे हम काम करेंगे, कैसे लिखेंगे, उसको एटलीस्ट 50% तो सॉल्व कर दिया है। तो सबसे बढ़िया यूज है जनरेटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट्स। उसके बाद यू कैन एंडलेसली रिफ्रेज वट एवर यू हैव रिटन फॉर क्लैरिटी, टोन, यू कैन समराइज। ऑब्वियसली a very big part of writing is कि you don't write in a vacuum, right? What you write is obviously dependent on what you have read earlier. आपने जो पहले कभी पढ़ा हुआ है या फिर किसी का काम आपको अच्छा लगा उसके बारे में आप, जैसे मान लीजिए बुक रिव्यू है, आप कोई अच्छी बुक है उसको आप रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समराइजेशन का। समराइजेशन के लिए भी यही बहुत अच्छा काम करता है। एक दूसरी चीज ये है कि हम में से काफी लोग लिखना चाहते हैं और अच्छा लिख भी पाते हैं कभी कभी, बट बीच बीच में हमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं आता है कि हमने शुरू तो कर दिया बट इसको हम बीच में अब क्या, जो मिडिल पैराग्राफ्स हैं उसमें हम क्या बात करेंगे। और अगर हमारे मिडिल पैराग्राफ भी हो गए हैं तो फिर कभी कभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि अभी हमने सारी बात कर दी तो इसका कंक्लूजन क्या हो। इन सब चीजों के लिए अगेन एआई इज वेरी वेरी हेल्पफुल। And obviously, one of the most important and final uses of AI is कि AI can actually suggest new things. आपने आपके पास ड्राफ्ट रेडी है या फिर अगर ड्राफ्ट नहीं रेडी है, आप केवल उस स्टेज पे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, यू कैन जस्ट आस्क ए रैंडम मतलब लिमिटलेस क्वेश्चंस कि इसके बारे में और क्या सोच सकते हैं, इसको किस तरीके से करना बेहतर होगा। तो ये सब चीजों में एआई बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिसमें एआई अच्छा नहीं है। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें एआई विल ऑलवेज फेल, और ये हमारे लिए एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है कि एआई ओरिजिनल रिसर्च नहीं करता है। क्योंकि अगर एआई ओरिजिनल रिसर्च करने लगा तो हम सब लोग क्या करेंगे, आपको ये सोचना चाहिए। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि एआई ओरिजिनल रिसर्च अभी तक तो नहीं कर पा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन माइंड कि आपको हमेशा जो ओरिजिनल आइडिया है वो आपका होना चाहिए। तो मान लीजिए आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं कि राजस्थान में जो विवाह परंपरा है, लाइक जो मैरिज सेरेमनीज हैं, हाउ दे आर इवॉल्विंग, हाउ द ट्रेंड्स इन मैरिज आर इवॉल्विंग, इस पे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है। तो जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है ना आर्टिकल का, कि व्हाई आर यू राइटिंग दिस, आपका मतलब क्या है, मतलब एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, आप अभी क्यों लिखना चाह रहे हैं और किस दिशा में आप इस आर्टिकल को ले जाना चाहते हैं, वो सब आपका होना चाहिए। आप अगर खाली ऐसा बोलेंगे कि आप किसी एआई से बोलते हैं कि राइट
एन आर्टिकल अबाउट ए ट्रेंडी टॉपिक इन राजस्थान, तो वो कुछ भी रैंडम आपको आउटपुट दे सकता है. व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि बिफोर यू कम टू एआई फॉर हेल्प, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं, किस चीज पे आपको बात करनी है, आप उस चीज पे क्यों बात करना चाह रहे हैं, और उसके अलावा जो बात आप करना चाह रहे हैं उसका उस कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंस क्या है, ये सब आपके पास होना चाहिए. एआई आपको कभी भी कुछ बहुत ज्यादा ओरिजिनल चीज नहीं देगा. आप उसको बता दें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपके असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है. आप सब लोग इंटर्नशिप के आइडिया से वाकिफ होंगे, तो आप एआई को ऐसा समझिए कि एआई बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटर्न है. तो इंटर्न का मतलब क्या होता है कि आप उसको डायरेक्शन देंगे और अगर वो अच्छा है तो आपके हिसाब से वो काम कर देगा. बट वो इंटर्न कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर इंटर्न आपको रिप्लेस करेगा तो फिर आपके लिए बुरी बात है, फिर मतलब यू आर लेफ्ट जॉबलेस. दूसरी चीज जिसमें एआई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता है, वो ये है कि अच्छा, शुरू में आप लोगों ने अगर 1 साल पहले एआई को यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रैंडम साइटेशन बन रहे थे. फैंटम साइटेशन उनको बोलते हैं. और कभी कभी राइटिंग के बीच में कुछ उल्टा सीधा भी आ रहा था जो फैक्चुअल नहीं था. इस मामले में एआई टेक्नोलॉजी ने काफी प्रगति तो कर ली है, बट अभी भी हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि एवरीथिंग विच हैज बीन कंप्लीटली करेक्ट. ऐसा अभी अभी क्या, आगे भी हम श्योर नहीं हो पाएंगे. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो एआई का आउटपुट है उसको एक बार आपको खुद से वेरीफाई जरूर करना होगा और बहुत डीपली वेरीफाई करना होगा. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एआई का यूज करते हैं तो आप में से कई लोगों ने चैट जीपीटी का यूज भी किया होगा, जेमिनाई का भी किया होगा, किसी किसी ने परप्लेक्सिटी का भी किया होगा. तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एआई के खुद के लिखने का, बोलने का एक तरीका है. तो वो तरीका जो है उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज टोन के लिए करवा सकते हैं, बट वो तरीका कहीं ना कहीं बहुत एक जड़ जड़ है. वो मतलब इट डज नॉट चेंज मच. देयर इज अ सर्टेन एनालिटिकल क्वालिटी टू दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग. तो अगर आप कोई चीज खुद लिखते हैं और आप कोई चीज एआई से लिखवाते हैं, तो अगर आप किसी चीज के 5 वर्जन लिखेंगे तो उन पांचों की अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी जो है, आपकी जो वॉइस है वो दिखती है. बट जो 5 वर्जन डिफरेंट आप 5 एआई से लिखवाइए, चाहे अलग अलग एआई से, उनमें कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी सी दिखेगी. इसका रीजन ये है कि एआई का जो ट्यूनिंग हुआ है ना, जो एआई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, वो ऐसे डाइवर्सिटी या फिर ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं बनाई गई है. उसका मेन काम है कि इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना और क्लैरिटी के साथ प्रोवाइड करना. इसीलिए अगर मान लीजिए मैं, ये ऐसी चीज है जिससे मैं नॉर्मली अपने काम में काफी डील करता हूँ. जैसे कुछ ऑथर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से देख पाता हूँ कि उन्होंने अगर कोई चैप्टर हमें सबमिट किया है तो चैप्टर का कौन सा पार्ट उन्होंने खुद लिखा है और कौन सा पार्ट एआई से लिखा हुआ है. ये एकदम, कोई भी जो आदमी ज्यादा चीजें पढ़ता है और ज्यादा ये सब चीजें जानता है, वो बहुत ही ईजी हो गया है ये जानना कि व्हाट हैज बीन रिटन बाय ए ह्यूमन एंड व्हाट हैज बीन रिटन बाय एन एआई. इस चीज को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब लोग जो राइटिंग वाले काम में हैं, हम सबके लिए खाली आउटपुट इम्पोर्टेंट नहीं है कि राइटिंग का कुछ पीस हमने कहीं भेज दिया. हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी कुछ पर्सनैलिटी होना चाहिए. द वे दैट आर्ग्यूमेंट्स आर फ्रेम्ड, द वे दैट एवरीथिंग इज रिटन. तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि एआई को केवल एक सपोर्टर के रूप में यूज किया जाए. यू डोंट बिकम द सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर ओन वर्कफ्लो. जो आपके वर्कफ्लो में है उसमें एआई असिस्टिव कैपेबिलिटी होना चाहिए. उसमें जो मेन ड्राइवर का काम है वो आपको खुद ही करना है. अगर मैं इस चीज को समराइज करूं जो मैंने अभी आपको पहला सेक्शन बोला है, हम ऐसे देख सकते हैं. What AI does, it can generate structure and drafts. What you must do is you must have a core ideas and core expertise in your own hands. You must have a core thesis to start before you ask AI to do anything. एआई एक काम और कर सकता है कि ये आपको, आपकी टोन बदल सकता है. अगर आपको लग रहा है कि कोई अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है जो आपने लिखा है, उसमें क्लियर फ्रेजिंग कर सकता है. बट जो भी आपने लिखा है उसको वेरीफाई करने का काम, जो आपने क्लेम, क्योंकि अगर आपने कोई गलत क्लेम की है ना, तो एक्चुअली एआई इज वेरी गुड कि आपकी गलत क्लेम को भी वो अच्छे से फ्रेज कर देगा और अच्छे से लिख देगा. बट वो क्लेम सही है या नहीं, ये वो नहीं करेगा, ये आपका काम है. और जो मैंने पहले बोला था कि ब्लैंक पेज सिंड्रोम जो होता है कि खाली कागज हमारे सामने पड़ा हुआ है, उस पे हमें कुछ लिखना है, तो वो वाला काम जो है एआई आसानी से कर सकता है, आपको पहला ड्राफ्ट दे देगा. बट आपकी खुद की वॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है क्या उस चीज में,
ये काम आपका खुद का है। इसके अलावा अडेप्ट टोन फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, दैट एआई कैन डू। इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन समथिंग फॉर, लेट अस सपोज कि यू हैव ऑलरेडी रिटन समथिंग फॉर योर कॉलेज असाइनमेंट, which is basically एक academic level की writing, but you want to convert it into एक maybe एक blog, एक public facing blog which you want to publish maybe somewhere else or maybe कैप की वेबसाइट पे ही। तो आपको पता है ना कि वो अलग अलग चीजें हैं, तो कैप पे आप वो नहीं लिखोगे जो आपने अपने ऑलरेडी अपने उसमें कोर्स में सबमिट किया हुआ है। बट इफ यू वांट द सेम आर्ग्यूमेंट्स टू बी मेड फॉर ए पब्लिक ऑडियंस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अडैप्ट अ टोन कि currently this is written for एक academic context and just I want to write it for a general audience, that you can do। बट ये इंश्योर करना कि आपका जो कंटेंट है वो अलाइंड है आपकी खुद की वॉइस के साथ और एक्यूरेट है, ये काम आपका खुद का है। अगर मैं इसको एकदम छोटे शब्दों में समराइज करूं तो AI इज फोकस्ड ऑन आउटपुट, and it is because you are working with AI that it is focused like obsessively with output। तो इनपुट पे फोकस करना आपका काम है। इनपुट केवल ये नहीं कि एआई को इनपुट क्या दे रहे हैं, बट ऑल्सो कि आप इस पूरे प्रोसेस में जो इनपुट आपका खुद का है वो क्या डाल रहे हैं, ये दोनों चीजें इंश्योर करना आपका काम है। लेट अस मूव ऑन नाउ टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कि व्हाट इज द आइडियल प्रॉम्प्ट। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी प्रॉम्प्टिंग फिलोसफी अभी क्या है? हाउ डू यू डिसाइड कि व्हाट टू आस्क एआई फॉर? हाँ, बेसिकली सर मैं अपना कंटेंट पहले खुद लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ प्लीज रिफ्रेश इन द ब्यूटीफुल इंग्लिश एंड इट गिव्स मी द करेक्ट the syntax or the language। Okay, that's a very nice way to use it। तो you are already demonstrating what I have already said, you have full control of the input, what you want is some kind of a editorial adjustment। Yes। So that is one very good use of AI। उसके And अलावा anybody else, मतलब what do you use it for, what kind of prompts do you use? Anybody else, you can type in or you can even speak, you can मतलब pitch in here। and sometimes better use I do is to neutralize the whatever I have written, because I have whatever I will be writing that will be containing huge emotional bias to one side. So if I have to neutralize the context I have written, I give the prompt accordingly। Now I That's a request very you, I think हाई अवेयरनेस टाइप का यूज है वो। तो ये एक बहुत ही सिंपल चावल फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं, चावल क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म इज राइस। तो एक जो एक बहुत ही सिंपल काम के लिए, जैसे राम नरेश जो अभी उन्होंने शेयर किया है, उन्होंने बोला है कि वो उनके पास कुछ इनपुट होता है और उनको स्ट्रक्चर, सिंटैक्स और या फिर वोकेबलरी, ग्रामर वगैरह में हेल्प चाहिए होती है, तो वो बोलते हैं कि ये करो। तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग इज कि जो राइस फ्रेमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इंस्ट्रक्शन पार्ट वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा और हाई लेवल टाइप से काम करना है, अगर आपको ज्यादा एंगेज करना है, अगर आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा एआई की हेल्प चाहिए ही ना हो, अगर वैसा है तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉम्प्टिंग में दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आप सिंपल बोलिए क्या करना है। बट आपको अगर लगता है कि हाई लेवल टाइप का कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सिंपल आइडिया ये है कि यू टेल द एआई व्हाट इट शुड एक्ट एज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ जो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ उसको कि आई स्टार्ट बाई डिफाइनिंग कि यू आर ए ओपिनियंस एडिटर, क्योंकि सारा जो किसी भी अखबार में जो ओपिनियंस आते हैं उसका जो सबसे अच्छा नॉलेज होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे बोलना चाहिए, उसका ओपिनियंस एडिटर को होता है। तो आई आस्क इट कि यू आर एन ओपिनियंस एडिटर। या फिर मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखा है जो मैं किसी जर्नल को भेज रहा हूँ, तो व्हाट आई विल स्टार्ट विद इज कि यू आर ए जर्नल एडिटर इन द फॉलोइंग फील्ड, ऐसा करके। उससे क्या होगा कि इट इज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज आइडियल, व्हाट कैन बी डन बेटर, इस टाइप से वो सोचना शुरू कर सकता है। तो अगर आप कोई लंबा काम करना चाहते हैं, हाई लेवल काम करना चाहते हैं एआई के साथ, तो यू कैन स्टार्ट बाय आस्किंग इट टू एक्ट इन ए सर्टेन वे। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस का काम क्या है, उसको बताना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे राम नरेश के केस में वो आएगा, इंस्ट्रक्शन इज सिंपली कि आई हैव गिवन द फॉलोइंग इनपुट, यू करेक्ट माई एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड रिफ्रेज इट टू मेक इट मोर एंगेजिंग और समथिंग लाइक दैट, दैट्स इट। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट।
कॉन्टेक्स्ट में मतलब जो भी आपको कुछ और बैकग्राउंड में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आई एम रिटर्निंग टू माई प्रीवियस एग्जाम्पल कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए कोई कॉलम लिख रहा हूँ। तो आई हैव स्टार्टेड आउट बाय सेइंग कि प्लीज एक्ट, ये मतलब यू आर ए ओपिनियन राइटर फॉर ए मेजर इंडियन न्यूज़पेपर, आई एम राइटिंग अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक, हेल्प मी स्ट्रक्चर एंड आउटलाइन। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या डालूंगा? मान लीजिए अभी परसों बजट आया है इंडिया में एंड आई एम राइटिंग समथिंग अबाउट द बजट। तो कॉन्टेक्स्ट में मैं ये डालूंगा कि आई एम राइटिंग दिस पीस 2 days आफ्टर द इंडियन बजट हैज बीन अनाउंस्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या हेल्प करता है कि कॉन्टेक्स्ट से क्या होगा कि जो भी आपका सिंटैक्स बन रहा है या फिर आउटलाइन बन रहा है या फिर कंटेंट आप बना रहे हो, उसमें इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके कुछ नया मटेरियल एआई खुद भी डाल देगा। आप हो सकता है उसको रिजेक्ट करें, आप हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट करें, और सबसे अच्छी चीज होगी आप उसको एक्सेप्ट करें विद योर ओन रिवीजन। ये अच्छी चीज होती है। बट अच्छी बात ये है कि उसमें कॉन्टेक्स्ट में वो सब कुछ आ जाएगा। आखिरी में आपको एक्सपेक्टेशन डालनी है, हार्ड एक्सपेक्टेशन जो होती है। एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि राइट इट इन नो मोर देन 1000 words, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। Write it in the format of a opinion column, that is an expectation. Write it like a professional research paper, that is an expectation. Write it like my personal blog, that is an expectation. तो आप ये चावल फ्रेमवर्क आप यूज कर ली, याद रखिएगा। चावल में जो राइस है उसमें आर इज फॉर रोल, आई इज फॉर इंस्ट्रक्शंस, सी इज फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड ई इज फॉर एक्सपेक्टेशंस। अब ये कोई ऐसा आइडिया, मतलब ये एक आइडियल प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं, बट इसका सब में हर जगह इसका पूरा यूज करना जरूरी नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है आपको केवल रोल और इंस्ट्रक्शन ही चाहिए हो, कहीं कहीं यू कैन स्किप द कॉन्टेक्स्ट। बट wherever you are trying to create a high level whatever high perfection टाइप की चीज, वहां पे आपको ये चारों चीजें डिफाइन करना चाहिए। दैट्स ए गुड मेथड। लेट अस मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। एकदम जो आदमी बिगिनर है एआई के यूज में, तो ही विल प्रोबब्ली स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ ए प्रॉम्प्ट, राइट एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आदमी की उसकी खुद की ऑथेंटिक कोई वॉइस नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा एआई का बहुत ही ज्यादा लो लेवल यूज कर रहा है। दूसरा, देर इज नो कॉन्टेक्स्ट हियर कि आर्टिकल जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है वो कहाँ लिखा जाना है, क्यों लिखा जाना है, कहाँ पब्लिश होगा और अभी क्यों लिख रहा है कोई भी। तो इसकी जगह, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, व्हाट यू कैन डू इज आस्क द एआई टू, यू आर एन अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी वो एक एक्सपर्टीज के दायरे में आ गया है। हेल्प मी आउटलाइन ए 1000 word आर्टिकल एक्सप्लेनिंग व्हाई अर्बन हीट आइलैंड्स मैटर फॉर इंडियन सिटीज। इससे क्या है कि एकदम वो क्लाइमेट चेंज के बारे में मतलब उस टाइप की जनरिक चीजें नहीं लिखेगा, जैसा गाय के बारे में 10 वाक्य लिखिए उस टाइप की चीजें नहीं लिखेगा वो। तो आप अपनी प्रॉब्लम प्रिसाइजली डिफाइन कीजिए। उसका जो ये आप देख रहे हो ना, यू आर एन अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट, दिस इज द आर वाला पार्ट, हेल्प मी आउटलाइन ए 1000 word आर्टिकल एक्सप्लेनिंग, ये सब एक एक्सपेक्टेशन है, इंस्ट्रक्शन है। और रिटन फॉर एन एजुकेटेड जनरल ऑडियंस, ये कॉन्टेक्स्ट है। 1000 word इज द एक्सपेक्टेशन। तो ये छोटे से प्रॉम्प्ट में, और ये जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग चार चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉम्प्ट आपका बहुत बड़ा होगा। इफ यू नो व्हाट यू वांट, तो आप ये देखिए 2 सेंटेंस में आप खत्म कर सकते हो अपना काम। नाउ लेट अस मूव टू सम यूज केसेस जिसमें हम डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं कि व्हाट दिस कैन बी गुड फॉर। ठीक है। पब्लिक राइटिंग में एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं किसी चीज के बारे में। तो उसमें आप अगर हाई लेवल यूज करेंगे ना, एक बहुत ही हाई क्वालिटी आर्टिकल आपको लिखना है, तो उसके लिए यू कैन यूज एआई इन एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द वे। डोंट थिंक ऑफ एआई की, मतलब यू कैन थिंक ऑफ एआई कि अगर आप काफी अच्छा लिख चुके हैं तो देन यू कैन थिंक ऑफ एआई प्योरली एक एंड में काम करने की चीज। या फिर यू कैन यूज एआई को, जैसे हमने अभी बोला, कोई कोई एआई को ऐसे भी यूज कर लेता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज। बट एक बहुत अच्छा यूज एआई का ये है कि आप उसको वर्कफ्लो में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए वर्कफ्लो क्या होता है? आर्टिकल लिखने के लिए वर्कफ्लो ये होता है कि पहले यू स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। देन आप ये सोचते हैं कि आप 4-5 कौन सी मेजर थीम उसके अंदर रखेंगे। ठीक है।
उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आप उसको कैसे कंक्लूड करेंगे, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट दैट द आर्टिकल शुड प्रोड्यूस ऑन द रीडर। ये तो इवन एट दिस स्टेज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट कि किस बारे में लिखूं और क्या लिखूं, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ए प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट वगैरह जो सारे मैंने यहाँ पे डाले हैं वो सब आई कैन लाइक शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, वो बाद में मैं शेयर कर दूंगा। ये खाली एग्जांपल के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि एकदम स्टेप वन जो होती है ना, फॉर्मुलेटिंग एन आइडिया, वहां पे भी आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू राइट एन आर्टिकल अबाउट the Indian budget in the year 2026 with the context that this is being written for young people। क्योंकि मान लीजिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि यंग लोगों के लिए क्या है बजट में, तो यू कैन राइट अबाउट कि दिस इज विद ए फोकस ऑन व्हाट द बजट सेज अबाउट यंग पीपल। Then ask me 5 clarifying questions that will help narrow the angle and audience। Let me do something, let me demonstrate थोड़ा लाइव तरीके से कि हाउ एआई विल लाइक मे बी यूज इट। ठीक है, मान लीजिए हम एकदम लो लेवल टाइप का काम करने लगे, राइट एन आर्टिकल। नाउ दिस इज समथिंग विदाउट a lot of context, this is something how a person who is not very adept at using AI is already using AI। Write an article about Indian budget 2026। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि आपने एआई को कुछ भी नहीं बोला है स्पेसिफिकली, तो एआई क्या करेगा, अच्छा एआई की कैपेबिलिटी ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि व्हाट इट विल गिव टू यू इज ऑलरेडी ओकेइश, मतलब इसमें बुरा कुछ नहीं है। बट अब ये देखना आप कि इसमें पूरा जो है ना, ये आइडिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब करंट अफेयर्स के लिए सही है, बट ये एक बहुत ही ज्यादा सरकारी टाइप से लिखा हुआ है। इट इज नॉट हेल्पिंग मी क्लैरिफाई एनीथिंग। तो what you can do is कि what would be another better way to do it? A better way would be to ask it, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, I want to write an article about Indian budget 2026 with a focus on students and young professionals। Ask me 5 clarifying questions that will make the article high context and high quality। तो आप इसका ये देखिए, इसका आउटपुट यहाँ पे, इट इज ऑलरेडी हेल्प, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है कि इट इज ऑलरेडी हेल्पिंग मी थिंक बेटर, क्लियरर, शार्पर, एंड इट इज मेकिंग मी ए बेटर राइटर ऑल्सो, मतलब इन द प्रोसेस। Who exactly is your core reader? Undergrad students, postgrads, competitive exam experience? What tone are you aiming for? Straight news explainer, opinionated, youth-centric take? Which budget dimensions matter most to you? अब जब मैंने ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला था ना कि आई वांट टू राइट एन आर्टिकल, मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं कौन सी डायमेंशन पे फोकस करूंगा। बट नाउ दैट आई एम मतलब स्पीकिंग टू एआई विद दिस कॉन्टेक्स्ट, आई ऑलरेडी हैव ए बेटर हैंडल ऑफ व्हाट आई ऑलरेडी हैड इन माइंड कि I can maybe talk about education funding, I can talk about student loans, I can talk about tax slabs कैसे change हो रहे हैं young earners के लिए। It is also asking me how political or analytical should it be, where will this article be published। तो वो the point that I'm trying to make here is कि अगर आप अच्छे से incorporate करते हैं ना AI को, तो not only will you have a output at your hand, you will also have a very sharper analytical angle to the article, and you will yourself have a better understanding of the thing that than you what you started with। So this is just like step 1। Step 2 में क्या हो सकता है? Step 2 में you can use it एक outline बनाने के लिए कि आपने जो भी आंसर दिया, create a clear outline for an 8,000 to 1,000 word article aimed at फला फला audience। Include a compelling introduction and conclusion। And step 3 is draft any particular section, क्योंकि जो आप आउटलाइन में इनपुट आपको मिलेगा ना, उसमें 3-4 सेक्शन होंगे आर्टिकल के, तो ड्राफ्ट द पर्टिकुलर सेक्शन यूजिंग द आउटलाइन, मेक इट एंगेजिंग बट नॉट सेंसेशनल, अवॉइड जार्गन, इनकॉर्पोरेट दी, इसमें आपका जो खुद का इनपुट है ना पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, वो आप डाल सकते हैं। तो यू स्टार्टेड विद आइडिया क्लैरिफिकेशन, देन यू हैव ए आउटलाइन प्रॉम्प्ट, then you have a section drafting prompt। If you follow these 3 steps, then the article that you have at your hand is
इट इज असिस्टेड बाय एआई, बट इसमें आपने खुद ने भी राइट किया है, आपने खुद ने इनपुट दिया है. इट इज ऑल्सो, इसका कॉन्टेक्स्ट बेटर है, इट इज शार्पर, मोर एनालिटिकल, इट इज मोर यूजफुल एज ए पब्लिशेबल थिंग देन इफ यू हैड सिंपली रिटन कि राइट एन आर्टिकल अबाउट इंडियन बजट 2026. Similarly, if you already have written it, or if you already have something which you have already published, for example, as I said, आपने अपने कोर्स में कोई पेपर ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, बट नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ए ब्लॉग, तो वहां पे आपके पास कुछ ऑलरेडी है आपके हाथ में रिटन मटेरियल, बट वहां पे आपका यूज क्या होगा एआई का, अगर आप करना चाहें तो वहां पे टोन चेंज में होगा. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट दिया है, रीराइट दिस पैराग्राफ फॉर ए जनरल ऑडियंस विद नो बैकग्राउंड इन द फील्ड, use simple language but do not oversimplify the ideas. या फिर this is something you can always do. Always ask AI to make 2 versions, 3 versions, 4 versions, 5 versions. डिफाइन करके कि एक वर्जन मान लीजिए पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा वर्जन अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए. वो क्या करेगा कि अंडरग्रेड स्टूडेंट्स वाले वर्जन में जार्गन कम डालेगा, बट इट वोंट सिंप्लीफाई कंप्लीटली. एक आप फिर अगला वर्जन मान सकते हैं जनरल ऑडियंस के लिए. जनरल ऑडियंस वाले में वो जार्गन बिल्कुल ही यूज नहीं करेगा. सिंपली you can divide it by professions. For example, मेरे काम में मैं बहुत सारा काम जो करता हूँ उसमें I ask for एक टोन ऑफ, एक पॉलिसी प्रोफेशनल्स के लिए जो टोन यूज होती है वो अलग होती है, एक पॉलिटिशियंस के लिए जो टोन यूज होती है वो अलग होती है, एक जनरल ऑडियंस की जो टोन है वो अलग है. तो सिमिलरली यू कैन आस्क फॉर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम राइटिंग. ये तो पब्लिक राइटिंग के बारे में था. एक आप में से काफी लोगों का जो यूज केस है, बहुत एक इंपॉर्टेंट यूज केस रिसर्च राइटिंग वाला भी होगा. तो कैन एनी ऑफ यू गाइस टेल मी कि रिसर्च वाली चीज में आप एआई का कैसे यूज करते हो? अभी तक तो मैंने पब्लिक राइटिंग के बारे में बात की है. रिसर्च राइटिंग इज अनदर रियली बिग एरिया जहाँ पे इसका अच्छा यूज किया जा सकता है, बुरा यूज भी किया जा सकता है. तो कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट आर दे यूजिंग एआई इन रिसर्च राइटिंग फॉर? परप्लेक्सिटी से सर अच्छे पेपर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लिया जा सकता है, और गूगल स्कॉलर जो है वो भी एआई को इंटीग्रेट कर दिया है. तो वहां पर अगर हम डालते हैं कि इस एरिया में रिसर्च पेपर चाहिए तो वो डायरेक्टली फाइंड आउट करके दे देता है. बिल्कुल. Somebody has written कि they are using it for summarizing texts. Very useful, very intuitive use. Anybody else? Structuring. Structuring is a very good use of the AI. तो रिसर्च राइटिंग में मुझे पता है कि a lot of people are already using in multiple ways. तो let me show you थोड़ा सा ज्यादा. What I want to show is कि instead of just using उसका जो जनरेट किया हुआ आउटपुट है अपने लिए, you can as a researcher you can use it very specific and innovative ways. For example, रिसर्चर्स को एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास एक चीज के ऊपर 50 टाइप के पेपर पड़े हुए हैं. मेरे पास 50 पेपर पड़े हुए हैं मेरे एक फोल्डर में, और आई डोंट नो कि उसका जो चैप्टर बनेगा तो वो क्या बनेगा. या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 5 डिफरेंट टाइप के आइडियाज हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि व्हाट विल आई, हाउ डू आई सिंथेसाइज देम. वन रियली गुड यूज ऑफ एआई इज, और बहुत ही मतलब लो एफर्ट टाइप का यूज, कि आपके पास अगर 5 टाइप के पेपर हैं, ऑल ऑफ देम एड्रेसिंग द सेम क्वेश्चन, एंड यू वांट टू राइट समथिंग व्हिच इज बिल्डिंग ऑन दोज, बट यू वांट टू डू समथिंग न्यू. व्हाट यू कैन डू इज, ये इस टाइप का प्रॉम्प्ट है कि आप ये बताइए, आई एम स्टडिंग टॉपिक फला फला, based on the following abstracts, identify common themes, debates and gaps, and do not invent citations. इसमें क्या होगा, और इसके नीचे आपको वो डालना है, एक सेकेंड. हाँ, तो ये वाला प्रॉम्प्ट यूज करेंगे मान लीजिए आप, या फिर ऐसा कुछ एक रफ प्रॉम्प्ट. उसके बाद आप जितने भी आपके पास 5-6 एब्स्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं या फिर पेपर पड़े हुए हैं वो डालिएगा. उसमें आपके खुद के पर्सनल नोट्स डालिएगा. उससे क्या होगा कि एआई क्या करेगा कि उन सारी चीजों को मिला के आपके लिए एक नया वो बना देगा, एक थीम, कि किस थीम पे आप काम कर सकते हैं. दैट थीम कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर व्हाटएवर यू आर राइटिंग. दैट इज अ वेरी एंड पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज ऑफ एआई दैट आई हैव कम अक्रॉस. इसके अलावा एक यूज है कि आपके, ये काफी लोग फेस करते हैं कि आपके पास 5 चीजें हैं जो आपको पता है कि रेलिवेंट हैं आपके काम में, बट आपको मिडिल ग्राउंड उन पे नहीं मिल पा रहा है. तो वो भी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है उसके लिए यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस. हेल्प मी राइट ए सिंथेसिस पैराग्राफ कनेक्टिंग दीज स्टडीज अराउंड द थीम ऑफ व्हाटएवर यू आर राइटिंग अबाउट. यूज कॉशियस एकेडमिक लैंग्वेज. इसमें आप एक काम और कर सकते हैं.
ये मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे बाद में आएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रिसर्च राइटिंग में एक बड़ा पैराग्राफ है, बहुत अच्छा है, उसके बाद एक दूसरा बड़ा पैराग्राफ है जो बहुत अच्छा है, बट वो एक से आप दो पे क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये थोड़ा मतलब डिसाइड करना, इसको फ्रेज करना इस थोड़ा डिफिकल्ट, उसमें भी इस टाइप का प्रॉम्प्ट काम आता है. Another use case is improving clarity. Rewrite this paragraph to improve clarity and flow while preserving academic tone and meaning. This you can do when you're this you can do when you are writing something बहुत लंबा, और ऑल ऑफ अस नो कि हम कुछ भी अगर लंबा लिखना चाहें, कोई 25 पेज का पेपर या फिर व्हाटएवर, हमारा सारा मेंटल एनर्जी शुरू के 12 पेज में खत्म हो जाता है या 10 पेज में खत्म हो जाता है, और आखिरी के पेज में तो हम लोग जैसा जैसा करके ही लिखते हैं. But the substance is there, but the flow is not there, and the discipline of language is not there. So you can use something like this when you have your original writing to restructure it to make the tone more disciplined and to make the flow more legible. उसके लिए use कर सकते हैं. एक बहुत ही अच्छा यूज और ये है कि एक स्ट्रक्चरल फीडबैक आप यूज कर सकते हैं. व्हेन यू आर डन विद राइटिंग, यू कैन आस्क इट टू एक्ट एज ए पीयर रिव्यूअर, एंड उसमें वो अच्छे से क्लीनली डेलिनेट करके बता देगा कि कहाँ पे वीकेस्ट पार्ट्स हैं आपकी राइटिंग में, कहाँ पे आपकी क्लेम सब्सटेंशिएट नहीं हुई है, कहाँ पे आपने सेम चीज रिपीट की है, या फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट में जो क्लेम किया था कहाँ पे यू हैव मिस्ड इट एंटायरली. दैट इज ए वेरी गुड यूज. ऐसा ही एक सेकंड यूज है विच आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. इसको जो ये एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने का जो पूरा तरीका होता है उसको साइन पोस्टिंग बोलते हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू कम अप विद दैट, तो यू कैन आस्क इट टू सजेस्ट साइन पोस्टिंग सेंटेंसेस टू इंप्रूव कोहेरेंस बिटवीन पैराग्राफ्स. तो that pretty much completes the bulk of our presentation. I will just summarize everything that I have said in some clear principles. Okay. You cannot be a good writer with AI if you are not a good writer without AI. ठीक है. AI, as I said, is a very good kind of intern. उससे ज्यादा आप उसको मत समझिए. You will be able to, if you are using AI without thinking, if you are using AI without any discipline, without any clear structure in your mind, you will be able to create outputs. और जहाँ पे सिर्फ आउटपुट काउंट होता है वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और जहाँ पे आउटपुट की क्वालिटी मैटर करती है, जहाँ पे आउटपुट का इंडिविजुअलिटी मैटर करता है, वहां पे योर आउटपुट विल बी रिजेक्टेड completely. This is a real world implication. Where I work, we have a fellowship program for which we invite applications. And let me tell you honestly, we receive like 10,000 applications. और उसका जो सबसे पहला फिल्टर है ना, वो यही है कि if we find कि somebody has used AI not to structure their work, but अगर किसी का purely AI generated ही है जो writing हम मांगते हैं, then they are like kicked out of that process in the very first step itself. That is why it's important to not just write with assistance of AI, but also to write with a clear direction in mind. And उसके लिए सबसे important चीज ये है कि आपको जो भी आप काम करना चाहते हैं AI को यूज करके, जो भी आप लिखना चाहते हैं, start out by thinking about what exactly are you writing. आपका खुद मतलब what is your own voice that has to come there. आपका खुद का opinion क्या है? Why do you care about that topic? All of that is very important before you actually start engaging with AI. दूसरी बात ये है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यू ऑलवेज हैव टू ऑपरेट एट ए हायर कॉन्टेक्स्ट देन एआई. इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि एआई ने अगर कुछ गलत किया है तो वो गलत है. आपको हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि आप उसको, जो एआई बोल रहा है आपसे, आप उसको और कैसे सुधार सकते हैं. अगर आप इस चीज पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इस मतलब इस लेवल पे, तो देन एआई का आउटपुट विल नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट टू यू. देन इट इज नॉट योर राइटिंग, देन इट इज जस्ट एआई राइटिंग. तो ऑलवेज ट्राई टू ऑपरेट एट ए हायर कॉन्टेक्स्ट जहां आप एआई को सजेशन दे सकें, आप एआई के काम को जज कर सकें. इफ यू आर इन लाइक इफ यू आर ए रिसर्च स्टूडेंट और व्हाटएवर, तो आपके लिए राइटिंग ऑलरेडी शुड बी थोड़ा फन. एआई से क्या होता है कि अगर वो कहीं कहीं पे फन नहीं होती है तो देन आल्सो दैट आल्सो कैन बिकम फन. बट ऑलवेज बी लाइक माइंडफुल ऑफ योर यूजेस, but also to expand what AI can do for you, always be experimenting. Continuously ask AI कि what else can you do. Always tell AI को exactly आपका अगर उसने जो आउटपुट दिया है उसमें आपको जो समझ में नहीं आया ना, या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, always tell it exactly what you dislike. What that means is कि उससे डिफाइन हो जाता है आपका पूरा प्रोसेस. कुछ आपके कोर प्रॉम्प्ट जो यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं ना, वो मेरे कोर प्रॉम्प्ट्स हैं जो अपने काम में मैं खुद यूज करता हूँ.
ऐसे ही आपको बहुत ही अच्छी काम हो सकता है कि आप खुद की अपनी एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बिल्ड करें। एक मतलब 10-15 कलेक्शन जो होते हैं प्रॉम्प्ट का, वो खुद का पर्सनल होना चाहिए, जो आप बार बार यूज कर सकें, आपको लगता है कि उससे अच्छा आउटपुट आता है। एंड फाइनल थिंग इज कि यू कैन ऑलवेज आस्क द एआई टू एक्सप्लेन। यू कैन आस्क इट फॉर मल्टीपल वर्जन्स, यू कैन आस्क इट, मतलब मल्टीपल टाइप की चीजें हो सकती हैं। यू कैन इवन आस्क एआई कि आप एआई के साथ बेहतर काम कैसे कर सकते हैं कोई अपने यूज केस के लिए। दैट इज अ वेरी गुड यूज ऑफ एआई। फोर्थ थिंग इज, दिस इज द थिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड, कि जो फाइनल वर्क है वो आपका है, वो एआई का नहीं है। जो फाइनल वर्क है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसमें कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, या फिर उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या फिर उसमें कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, कोई और टाइप की प्रॉब्लम है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। यू कांट ब्लेम एआई फॉर एनीथिंग। तो प्लीज ओन योर फाइनल वर्क। And in the last slide of the this presentation, let me just share the tech stack which can be useful for you, which you guys are already using. इसमें मैं आपको बताता हूँ। जेमिनाई जो है, इट इज वेरी यूजफुल इन डे टू डे वर्क, एडिटिंग वगैरह में। चैट जीपीटी इज वेरी गुड एट राइटिंग एट हायर कॉन्टेक्स्ट लेवल, राइटिंग विद ए हाई डिमांड ऑफ मतलब ऑडियंस वगैरह, टोन वगैरह की, वो चैट जीपीटी जेमिनी से अच्छा करता है। अगर आपको थोड़ा अच्छा लिटरेरी क्वालिटी चाहिए राइटिंग में, उसके लिए क्लॉड बहुत अच्छा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस यूज क्लॉड और नॉट। क्लॉड जो है उसमें राइटिंग का जो फ्लेयर आता है ना, एक थोड़ा मतलब क्योंकि चैट जीपीटी और जेमिनी थोड़ा सा एक मैकेनिकल टाइप लिखते हैं, क्लॉड में राइटिंग का जो फ्लोरिश है वो ज्यादा अच्छा है। क्लॉड के जैसा ही एक और एआई है, किमी नाम से है। किमी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एट राइटिंग आउटपुट। डीप सीक इज ऑल्सो गुड। परप्लेक्सिटी इज यूजफुल फॉर साइटेशंस और सोर्सेज वगैरह के लिए। तो आप ये सब का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप फ्री प्लान पे हैं तो आपका जो आउटपुट विंडो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वो 6-7 बार आप प्रॉम्प्ट करोगे तो उसके बाद वो बोलेगा कि अभी वेट करो नेक्स्ट वो करने से पहले। तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन टेक द आउटपुट दैट इट हैज प्रोवाइडेड एंड यू कैन जस्ट मूव टू द अदर मॉडल। दैट्स इट। और आई डोंट थिंक यू गाइस माइट बी यूजिंग DeepSeek and Kimi, but these are very underrated. Let me add one more thing. Uh, एक मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैसेज में ही। एक क्वेन क्वेन एआई है, ये चाइनीज कंपनी है, अलीबाबा। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। एक बहुत ही जेनरिक वर्कफ्लो के लिए यू आर गुड विद इनकॉर्पोरेटिंग चैट जीपीटी या जेमिनाई, क्लॉड या किमी, एंड ये सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस एंड्स माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर फॉर योर इंसाइटफुल पर्सपेक्टिव। एकेडमिक्स और रिसर्च जर्नी में काफी काम आने वाला है। इसी के साथ सर मैं कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास सेशन से पहले, और वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वो जो क्वेश्चन आपके पास पहले आए हैं उसके अलावा आई थिंक 1-2 क्वेश्चन इधर मैसेजेस में ही पड़े हुए हैं, तो आप दोनों हाँ, सबको मिला के आप कर सकते हो। हमारे पास ठीक टाइम है अभी क्वेश्चंस के लिए। हाँ, तो ऑडियंस से बताइए। भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि कंटेंट एआई रिटर्न है उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज में लिया जाता है? इसके यूज के लिए एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट। मैं यार इसमें अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। आई विल शेयर इट विद यू एंड यू कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप बाद में, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि एआई जो कंटेंट डिटेक्टर्स हैं, द वे दे वर्क इज, जो एआई का आउटपुट होता है ना, उसकी अपनी कुछ लिंग्विस्टिक क्वर्क्स हैं। जैसे चैट जीपीटी हमेशा ये बोलता है नॉट दिस बट दिस, इस टाइप की चीजें यूज करता है। तो व्हाट द एआई डिटेक्टर डज इज, इट डज नॉट डिटेक्ट कोई ऐसा मतलब सीक्रेट हिडन तरीके से। इट इज जस्ट लुकिंग एट द फ्रेजिंग दैट हैज बीन यूज्ड, लुकिंग एट what words are being used, क्योंकि AI tends to overuse some words at the cost of other words, and AI tends to use some grammatical structures over others. तो इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने AI से आउटपुट लिया भी है, आपने उसकी हेल्प ली है, बट उसको अगर आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसमें AI डिटेक्टर डज नॉट वर्क एंड इट इज नॉट सपोज टू वर्क। क्योंकि अगर आपने खाली उससे मतलब इफ यू आर नॉट जस्ट कॉपी पेस्टिंग AI कंटेंट एनीवेयर, देन नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद एनीबडी यूजिंग AI, ठीक है। तो AI डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि किसी ने पूरा उधर ही चेप, ऐसा पूरा ही जो काम AI से निकला वो चेप दिया है। वैसा करना भी नहीं चाहिए। एंड इफ यू आर यूजिंग AI बट मतलब स्ट्रक्चरिंग अकॉर्डिंग टू योर वॉइस, देन यू शुड बी फाइन।
So most of the questions you have already covered, which we have received, and some questions which you haven't went into the depth. I'm asking that. Hmm. So Rahul from IIT Delhi asks, like tools like Grammarly that now have built-in AI feature. If you use such tools only for language correction, does it count as AI generated writing? यार इसमें जो देखो एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दिस इज एग्जैक्टली वेयर प्रॉम्प्टिंग मैटर्स। आपने एक ऑथेंटिक पूरी तरीके से खुद लिखा हुआ है। आपको उसमें स्ट्रक्चर में, टोन वगैरह में किसी चीज़ में हेल्प नहीं चाहिए एआई की। व्हाट यू वांट एआई टू डू इज़ जस्ट करेक्ट ग्रामेटिकल एंड जो उसके कहीं पे मतलब क्वेश्चन मार्क आना था वहाँ पे नहीं आया, इस टाइप के एरर्स। That kind of a usage is not counted as AI generated writing, not at all. But you have to be specific in your prompting. Prompting में आपको क्या करना है, उसको बोलना है, do not rework or rewrite anything, just correct grammatical mistakes ये। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको प्योर ऑथेंटिसिटी चाहिए, आपको एआई का कोई काम चाहिए ही नहीं एक्सेप्ट फॉर ग्रामर, द वन थिंग दैट यू कैन डू इज, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हो, ग्रामरली में तो वो सजेशंस देता है ग्रामर वगैरह की, एंड यू कैन जस्ट यू कैन मतलब यूज देम और मतलब डिसाइड नॉट टू यूज देम। अगर आप ओपन कोई सॉफ्ट ये मॉडल यूज करते हो इस टाइप का, चैट जीपीटी टाइप का, यू कैन इवन आस्क इट कि जस्ट प्रोवाइड मी सजेशंस और जस्ट प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ करेक्शंस टू बी मेड, डोंट चेंज एनीथिंग। उससे क्या होगा कि वो आपको 10-15 ऐसा नंबर लिस्ट दे देगा कि पहला ये चेंज करो, दूसरा ये चेंज करो, दैट्स इट। तो उसके लिए दिस इज अ नॉन ब्रेनर, दिस डज नॉट काउंट एज एआई जनरेटेड राइटिंग एट ऑल, नाइदर शुड इट मतलब लॉजिकली। Okay, thank you, sir. Now, next question from Sonam from Rajasthan University. She asks, can you recommend some reliable AI tools that help in creating presentations or PPT efficiently? पीपीटी वगैरह के लिए एक बहुत अच्छा टूल जो यूज कर सकते हैं। अच्छा, पीपीटी में दो तरीके की चीजें होती हैं। हो सकता है कि आपको पूरी बनी बनाई मतलब पीपीटी चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप पीपीटी बना पा रहे हैं, उसमें यूज करने के लिए आपको ग्राफिक्स चाहिए। बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स जो है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, नोटबुक एलएलएम, ये गूगल की ही सर्विस है, ये बनाती है बहुत अच्छे ग्राफिक्स। आप सीधा स्लाइड जनरेट करने के लिए अच्छी स्लाइड जनरेट कर देगा आपको, आप इमें यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आई थिंक गूगल स्लाइड्स जो है ना, गूगल स्लाइड्स के अंदर भी एक कैपेबिलिटी आ गई है, थोड़ा मतलब जनरेट करने की स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स भी ठीक ठाक स्लाइड जनरेट कर देता है बेसिक वाले, बट थोड़े अच्छे कीमी जनरेट करता है, और नोटबुक एलएलएम जो है अच्छे खासे ग्राफिक जनरेट कर देता है, बिल्कुल मतलब जो स्लाइड में आप ठीक ठीक मतलब एकदम उठा के यूज कर सकते हैं एज दे आर। Okay, so next question is from our online audience, Adnan. How to do literature review using AI? लिटरेचर रिव्यू के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि यू हैव ए लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड व्हाट यू वांट। अच्छा, बिफोर लेट मी मतलब रीआइटरेट माय फिलॉसफी जो मैंने शुरू में बोली थी, पहले यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि यू हैव टू ऑपरेट एट ए higher context than what you are using AI for. दो प्रॉम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए हैं, लेट मी शेयर देम अगेन। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। राम नरेश, आई नीड योर हेल्प इन दिस, ओके? Sure, sir. सपोज आई एम डूइंग लिटरेचर रिव्यू, तो मेरा जो इनपुट है उसमें क्या क्या होगा, मतलब व्हाट डू आई ऑलरेडी हैव बिफोर आई स्टार्ट लिटरेचर रिव्यू? First thing is on which topic I am doing literature review, and एग्जैक्टली। what I want to do, how I want to do, हम्म। and what uh, output I am expecting. For हम्म। example, uh, I want to check some particular objective from the particular papers. हम्म। ये सब के अलावा हमारे पास ऑलरेडी एक पेपर भी होंगे ना, एक लिस्ट ऑफ पेपर्स होगा Right. जिसको हम रिव्यू में डालने वाले हैं। तो लेट अस यूज आवर चावल वाला फ्रेमवर्क यहाँ पे, ठीक है? तो व्हाट इज द रोल दैट यू वुड असाइन टू एआई?
यू गाइस आर फ्री टू मतलब कमेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, मैं इन कॉल मैसेजेस में, व्हाट इज द रोल दैट यू थिंक कि अगर हमें लिटरेचर रिव्यू करना है तो हम रोल क्या देंगे एआई को। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कुछ, यू कैन असाइन एनी ऑफ दीज, यू कैन academic coach, professional, PhD scholar, पेपर ये रिव्यूअर। पेपर रिव्यूअर, ये सब चीजें जो है ना आप इसको बोल सकते हैं। तो यू स्टार्ट आउट बाय सेइंग कि यू हैव टू एक्ट एज एन एकेडमिक कोच। एकेडमिक कोच इसलिए अच्छा है, ये जो रोल है ना कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू, आप जर्नल में कोई पेपर लिख रहे हो कहीं पे भी। एकेडमिक कोच का मतलब है ए पर्सन हु थिंक्स लाइक एन एकेडमिक बट वर्क्स लाइक, मतलब ऑन द राइटिंग वाला पार्ट, जो रिसर्च वाले पार्ट की जगह राइटिंग वाले पार्ट पे ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यू विल से कि आई हैव दी आई हैव समरीज। रोल में वो चीज, राइस वाली चीज में जो हमने चावल बोला था उसमें आई क्या है, व्हाट इज आई इज इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आप ये दोगे कि आई हैव दी फॉलोइंग समरीज फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स, और यू कैन अपलोड द एक्सट्रैक्ट्स देमसेल्व्स। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट्स विद ऑथर एंड ईयर। ठीक है, उसके बाद आप ये, आई एम प्रेटी श्योर कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू अच्छा करना चाह रहे हैं तो यू वुड हैव मेड ए नोट ऑफ ए लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन माइंड, तो आप वो भी आपको डालना चाहिए आपकी पर्सनल रीडिंग से। आई हैव द फॉलोइंग बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद आप लिस्ट डालिए आपकी खुद के ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, तो नाउ यू इंस्ट्रक्टेड कि राइट ए कोहेरेंट literature review paragraph, use synthesis language, ensure proper academic tone, note where I should add citations। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आपका लिटरेचर रिव्यू वाला प्रॉम्प्ट, जो एक बहुत ही फाइन प्रॉम्प्ट है। आया समझ में? अदनान तो शायद यहाँ पे है नहीं, बट आई थिंक दिस pretty much explains everything। कि यस सर। you are an academic coach, I have the following summaries from extracts, I have these bullet points from my own reading, so now you have to write a coherent literature review paragraph, use synthesis language, and ensure proper academic tone. Note where should I add citations। ठीक है, इससे आपका लिटरेचर रिव्यू का पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको अपना खुद का इसमें वॉइस डालना है। अगर आप ये जो इसका आउटपुट आया है ना, इसको ऐसे का ऐसे ही उठा के दे दोगे तो दिस इज प्रॉपर, दिस डज नॉट काउंट एज ए हाई क्वालिटी वर्क, और ये एआई प्लेजरिज्म में भी आएगा। आपको क्या करना है कि इसको लेके इसको अपनी खुद की वॉइस में लिखना है एंड यूज ए लॉट ऑफ द वर्क दैट इट हैज ऑलरेडी डन, बट इनकॉर्पोरेट योर वॉइस ऑल्सो। ऐसा इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? दिस आई एम क्वेश्चन। आई एम सीइंग टू मोर क्वेश्चंस हियर। एक तो क्वेश्चन ये था कि हाँ। plagiarism software sometimes flags even self-written text as AI generated. How to navigate this problem? ये देखिए, इस प्रॉब्लम का कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। दिस जस्ट एज आई सेड ना कि एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर कोई ऐसा हायर लेवल क्वालिटी नहीं है। इट इज जस्ट लुकिंग फॉर सम फ्रेजेस, इट इज लुकिंग फॉर सम ग्रामेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो अगर दैट इज वाई एआई डिटेक्शन जो सॉफ्टवेयर है उसका जो प्रूफ है, इट इज नॉट एडमिसिबल एनीवेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज जस्ट एक ह्यूरिस्टिक चेक फॉर पीपल हु डू दैट। तो इट उसकी जो सक्सेस रेट है, इट इज ओनली लाइक 90%। 10% ऑफ द टाइम्स व्हाट इट इज flagging as AI written is not actually AI written. So that is not very big of a problem. What you can do individually is just we try to make our work as authentic as possible. उससे आगे कुछ किया नहीं जा सकता। एक क्वेश्चन यहाँ पे और था, फॉर रिसर्च राइटिंग डू यू, ये तनु ने पूछा है, फॉर रिसर्च राइटिंग डू यू रिकमेंड यूजिंग अपग्रेडेड जीपीटी वर्जन्स और बेसिक मॉडल वर्क्स फाइन? इसमें डिपेंड करता है कि यार आपका यूज एग्जैक्टली क्या है। बेसिक मॉडल और उसमें जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें अंतर केवल ये है कि हाउ मच वर्क कैन यू गेट डन बिफोर इट एग्जॉस्ट इट्स विंडो। अगर मैं बेसिक मॉडल में काम कर रहा हूं तो वो मेरे 6 क्वेश्चन पूछने पे, या फिर अगर मेरे क्वेश्चन थोड़े लाइट टाइप के हैं तो मे बी 10 क्वेश्चन पूछने पे वो बोल देगा कि अब आप आगे यूज करना। फॉर ए लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर नॉट लाइक बहुत ज्यादा एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, when our work is structured like around a week or so, कि हमें आज ये पार्ट करना है, कल ये पार्ट करना है, परसों वो पार्ट करना है, and if you have time, तो then basic model works just fine, कोई ऐसा इश्यू नहीं है उसको यूज करने में। बट आपका अगर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट इंटेंसिव काम है, either in time
और इन कंटेंट। या तो आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है या फिर आपका टाइम कम है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन द अपग्रेडेड जीपीटी वर्जन फॉर, एंड दैट ऑल्सो आई वुड रिकमेंड डू इट जस्ट फॉर 1 मंथ और 3 मंथ्स। ऐसा आप पूरे साल का एक साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू माइट नॉट नीड दैट कैपेबिलिटी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको यूज करना भी है तो यू कैन ट्राई, मतलब जैसे किमी है, किमी का जो आई थिंक थोड़ा सस्ता है चैट जीपीटी से, यू कैन ट्राई दैट। और यू कैन ट्राई डीप सीक, उसका भी थोड़ा सस्ता ही है शायद, जहां तक मैं जानता हूँ। और यू कैन ट्राई मल्टीपल वेरिएशंस, यू कैन टेक वन आउटपुट, यूज इट फॉर डिफरेंट इनपुट, ये भी काम कर सकता है। ऑल ऑफ दिस वर्क्स फाइन, इतना कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। And next question is how AI can help in references from Swati Agarwal. स्वाति, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन। डू यू मीन हाउ एआई कैन हेल्प इन फाइंडिंग रेफरेंसेस, और डू यू मीन मैकेनिकली कि हाउ एआई कैन हेल्प इन मतलब फॉर्मेटिंग रेफरेंसेस? व्हाट डू यू मीन? तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते यस हैं। सर, आई वांट हाँ टू नो स्वाति बोलिए। कि रेफरेंसेस एग्जैक्टली कैसे एआई फाइंड कर सकता है। क्या हम उन पे बिलीव कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सही बता रहे हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप किस चीज के बारे में रेफरेंसेस चाहिए, उसके बारे में आप बोलिए। जैसे मुझे मुझे कोई हाँ, बुक का रेफरेंस चाहिए, लेकिन वो बुक मुझे मिल नहीं रही है, तो एग्जैक्टली मैं बुक नंबर और बुक का पेज नंबर वगैरह सब कुछ एआई से पूछ के उसको क्लियर कर सकती हूँ, कि ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो एकदम करेक्ट बता रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस में आप ये ट्रस्ट नहीं कर पाओगी एक्चुअली। अगर कोई बुक आपके पास उसका वेरीफेबल मटेरियल नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आस्क एआई टू जनरेट, मतलब कौन से पेज पे कौन सा ये है। ये जो हाइपर लोकल टाइप की आप बात कर रही हो ना, इसके लिए एआई इज नॉट वेरी गुड। इवन व्हेन इट इज एबल टू फाइंड द रेफरेंस, तब उसका जो पेज वगैरह वाला गेम है वो गलत ही होगा लगभग हमेशा, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा रहा है। मुझे लग रहा था कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि यू हैव ए सम सब्जेक्ट इन माइंड एंड यू वांट टू रेफरेंस ए लॉट ऑफ अदर मटेरियल अबाउट इट। उसके लिए एआई का बहुत अच्छा यूज है कि एआई कैन सजेस्ट यू व्हाट फर्दर पेपर्स यू कैन कंसल्ट, व्हाट फर्दर बुक्स यू कैन कंसल्ट। वो सजेशन में बहुत अच्छा एआई काम करता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेटिंग प्रॉपर एक्चुअल रेफरेंसेस, उसमें एआई इज नॉट दैट यूजफुल। ओके सर, थैंक यू सो एक मच। सेकंड, रामनरेश, एक क्वेश्चन और था यार, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा वो। Which AI somebody tool had can be used for creating graphic diagram for summarizing lengthy sections in thesis? which AI tools can be used for creating graphic diagrams for summarizing lengthy sections in thesis? इसके लिए just यूज गूगल जेमिनाई और यूज नोटबुक एलएलएम। सबसे इसके लिए इंपॉर्टेंट काम जो करता है वो नोटबुक एलएलएम है। नोटबुक एलएलएम विल क्रिएट द काइंड ऑफ ग्राफिक डायग्राम्स विच हमने सोचा भी नहीं होगा, इस टाइप के अच्छे डायग्राम बना देता है। और एक क्वेश्चन किसी का था, ये मुझे जो लिस्ट भेजी गई थी, somebody had asked, say, can you suggest how to use AI when my primary language is Hindi and I am writing my thesis in Hindi? ये आई थिंक मिस हो गया था क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एआई ज्यादातर जिस डेटा पे ट्रेंड है वो इंग्लिश है। तो द बेस्ट लैंग्वेज टू वर्क विद एआई इज इंग्लिश, बट दैट डज नॉट मीन कि वो हिंदी में अच्छा काम नहीं कर सकता है। आप हिंदी में एक्चुअली क्या कर सकते हो, लगभग सारे प्रॉम्प्ट्स जो है ना आप इंग्लिश वाले, वो आप इंग्लिश में ही यूज कीजिए, बट अपना कंटेंट हिंदी में रखेंगे तो वो सेम काम करेगा। इट विल इवन यूज आपका हिंदी का वोकेबलरी, अगर आप देखेंगे ना तो वो सेम चीज कर सकता है। द ओनली डिफरेंस इज कि आपको जो डबल चेक करना होता है ना, वो हिंदी में आपको ट्रिपल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी इज नॉट द लैंग्वेज दैट एआई हैज बीन ट्रेन्ड ऑन। उसका जो कॉर्पस है हिंदी का, ऑन विच इट हैज बीन ट्रेन्ड, इज वेरी लाइक इंग्लिश के मतलब कंपैरिजन में तो काफी छोटा है। इसीलिए उसका जो आउटपुट है बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं आएगा। बट इवन दैट सेड, देयर इज रीजन टू बी ऑप्टिमिस्टिक। पिछले एक साल में उसकी हिंदी की प्रोबेबिलिटी में काफी ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा सुधरी है। तो लगभग लगभग सारे जो मैंने प्रॉम्प्ट और यूज केसेस बताए हैं, वो सारी चीजें यूज हो जाएंगी हिंदी के काम में भी। आप हिंदी में एडिशनल काम भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको कोई इंग्लिश सोर्स है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, दैट इज वेरी इजीली डुएबल। यू कैन जस्ट आस्क एआई कि आप भावानुवाद कीजिए रेदर देन शब्दानुवाद। उसके अलावा ट्रांसलेशन के अलावा वो हिंदी में भी रेफरेंसेस ढूंढ के निकाल सकता है, बट अगेन आपको रेफरेंसेस ट्रिपल चेक करने पड़ेंगे हिंदी में। Okay, sir. Thank you. Today's discussion has given us not only clarity about how to use AI tool responsibly,
but also confidence about maintaining our originality and academic integrity while embracing technology. I'm sure each one of us is leaving this session with practical insights that we will immediately apply in our writing and research work. On behalf of Cape Rajasthan organization, I extend my heartfelt gratitude to Prince Chauhan for his sharing his valuable time, experience and wisdom with us. Thank you to all participants for your active engagement and excellent questions. With this, we conclude today's session. Have a wonderful evening ahead. Thank you, everyone. Thank you, sir. Okay. Thank you everyone for being here. Thank you, Ram Naresh, for wonderful hosting. Thank you, Cap Rajasthan, for inviting me. I think this is a really good platform. I expect great things for the platform. And as the next step, whatever prompt library I have shared, I will share it with all of you guys. You can share it in your group, okay? And you are free to create your own prompts. वो सब आप कर सकते हो. Okay. Thank you everyone.